welcome to Now Showing. This week is a wow week. We have artists who have taken the big leap, directors whose cinema will be respected for the statement that it makes, and people who are ready to take our cinema to bigger heights. I'm Atika Farooqi. Let's begin with the headlines. Anek is a very well-shot, well-meaning political thriller which strikes an unbiased debate but is weighed down by confusing narrative. Actor Ayushmann Khurrana talks about living the dream by giving some of the most powerful performances on screen with his films. Hansal Mehta, Tanuja, Pratik Gandhi talk about telling stories with love and warmth in modern love. And rapper Yo-Yo Honey Singh wants to battle it out with an international rapper and talks about his new song. Well, watching Anek was a baffling experience. I was constantly wondering what would I say about the film. It's so well researched, so well meaning, with such a powerful intention, so well shot, so well mounted, and at the same time, too layered, too complex for an average Indian to understand. It's not your average popcorn movie. It's cinema which mixes documentary style with cinematic luxuries. Ayushmann Khurrana is Aman, with alias Joshua, living somewhere in Northeast, no state specifically. Co-runs a coffee shop, has a make-believe affair with an aspiring boxing champion. He's an undercover operative of the Indian government, planted in the region to broker peace talks with the largest separatist group. Anek has strong atmospherics. There is no jingoism here. Anek also does not take sides. There is no enemy here. Anek, which means diversity, takes us back and forth from Delhi to beautiful locales of Northeast, a land as beautiful and as scarred and bloodied as Kashmir. There are innocent faces turning into militants, little children allegedly being brutalized by the army. The film is bold enough to state the history as it is and start a debate on the after effects of militancy and the result of the presence of Indian armed forces on the psyche of the inhabitants. It's a political thriller that is ready to openly speak the hushed words. In a scene, a character says, "More than maintaining peace, it's easier to maintain a war." What is peace? Ultimately, it comes in the garb of control, says Ayushmann, that is Aman. Director Anubhav Sinha, along with writers Seema Agarwal and Yash Keswani, take us to narrow bylanes of genuine socio-political turmoil that the young boys are going through or have gone through. What works against the movie is that it's heavy, verbose, and sometimes too many facts and words and names are packed into a tiny scene. Abrar Butt from Kashmir is a sweet-sounding senior bureaucrat who happens to be a Kashmiri but is ready to go to any extent to control the Northeast politically by partnering and controlling the rebel groups. Every performance in the film is worth applauding. Anek's editing, though, could have been 20 minutes sharper and shorter. Its writing could have been bit simpler, and I wanted to see Northeast not just as a troubled area but also the place that has great food, great clothes, lovely music. The human drama is a bit missing in Anek, which leads us to get a heavy dose of facts against an equally enjoyable experience. But Anek is a film that must be watched for its detailing and earnest intentions. And the man himself, Ayushmann Khurrana, the man of the moment. He highlights Anubhav Sinha's Anek as its lead actor, has changed his look, physique and hair for the same, but back now to his old style. With the release of film Anek, he reiterates what actors must do. They must do conscience-pricking cinema and why it would be wise for them to even get rid of their surnames. Here is why. In conversation, it's me with him. तो कितने इंटरव्यूज हो गए आज? गिने नहीं मैंने पिछले 4 दिन से यही चल रहा है, लेकिन इतनी खूबसूरत जो इंट्रोडक्शन है आज तक नहीं सुनी। तो आप ही से सीखा है। अरे खुद भी आप लिखते हैं, आपकी इनफैक्ट किताब मैंने ऑर्डर कर दी है, क्रैकिंग द कोड, तो वो मैं अब पढ़ना शुरू करूंगी। उस वक्त मेरे पास कोई फिल्म ही नहीं थी करने के लिए, इसलिए लिखी थी मैंने। अब साल में 3 फिल्में कर रहा हूँ, वक्त नहीं मिलता कुछ और लिखने का, लेकिन सच में इसलिए लिखी थी कि फिल्में तो अच्छी आ नहीं रही, किताब ही लिख लेते हैं। बट दैट इज ऑल्सो गुड यूज ऑफ टाइम ना, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिव थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये जो आप बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो एक ही बात को 1000 बार कैसे कहते हैं, ये कला आप में आ गई?
ये कला हर एक एक्टर में है, मुझे लगता है। जो एक एक्टिंग होती है फिल्म शूट करते हुए, दूसरी एक्टिंग होती है फिल्म प्रमोट करते हुए। तो वही अभी चल रहा है। हाँ। और मतलब एक बात तो 10 तरीके से बोलना, कैसे बोला जाता है, सवाल भी तो सेम ही होते हैं ना। एक तो करेक्ट। तो आपने जैसे अभी ये इंट्रोडक्शन किया है, वैसे सुनने को नहीं मिलती है। ये सवाल भी जो आपने पूछा, वो सवाल भी पहली बार किसी ने पूछा, तो ये मज़ा आएगा मुझे लग रहा है इसमें। बाहर एक बड़ा ऊंचा कद का आदमी दिखा मुझे, बॉडीगार्ड है आपका? जी। किस आपको किस आपदा से बचाता है वो आपदा कुछ नहीं होती, बस ये है कि कुछ लोग जैसे फोटोग्राफ्स मांग लेते हैं। हाँ। और दिन में अगर 50 इंटरव्यू करने हैं, हाँ। तो 50 की जगह 30 ही ना कर पाए, कहीं 50 हो जाने चाहिए। वो टाइम की पाबंदी होती है, तो मैं खुद मना नहीं कर पाता। मैं मना नहीं कर पाऊंगा, तुम देख तो लो। वो बॉडीगार्ड ऐसे करता है। हाँ। उनको देख के लोग वेबसाइट पे अपने आप हो जाते हैं। और अच्छा लगता होगा ना? जी। bodyguard। अच्छा, तो ऐसा अच्छे वाली बात नहीं, कभी कभी बोलते रहने दो यार। रहने दो यार। हाँ, बट वक्त होता तो बिल्कुल फोटोग्राफ्स लीजिए, बात कीजिए, लेकिन जो वक्त ही नहीं है और जर्नलिस्ट वेट कर रहे हैं, हाँ। तो आई थिंक वो ठीक नहीं रहेगा। हाँ, तो वो बॉडीगार्ड भी कभी कभी गलत हेडलाइंस बनवा देते हैं। जी जी जी, वो नहीं बनने देनी है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, आयुष्मान की बहुत अच्छी फिल्म एक आ रही है, अनेक। कमाल की जोड़ी है। अनुभव सिन्हा सोचते हैं, कंसेप्चुलाइज करते हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में देखा है, जिस चीज़ से वो बहुत उदास होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, और जिसके बारे में बहुत रोष होता है उनके दिल में, वो उस पर पिक्चर बनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट एक होमोजेनस एंटिटी नहीं है। हर एक स्टेट का अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, अपने ट्राइब्स हैं, अपने इश्यूज हैं। इसलिए हमने एक्चुअली एक स्टेट का नाम नहीं लिया है, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तो लेकिन हमने जैसे गाड़ियों के नंबर भी NE लिखे हैं उसके अंदर, नॉर्थ ईस्ट। ओह नाइस। वो अब लेकिन वो इशू देखकर आपको पता चल जाएगा, अगर पॉलिटिक्स में आप समझते हैं नॉर्थ ईस्ट की, तो किस स्टेट की बात हो रही है। ओके ओके। एक फर्स्ट ड्राफ्ट दिया था सर ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। लास्ट ड्राफ्ट मुझे मिला था फिल्म की शूट से एक दिन पहले। तो उससे मुझे पता लगा सर ने उसका नैरेटिव बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया था, क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स इंक्लूड उसमें की थी। काफ़ी जर्नलिस्ट नॉर्थ ईस्ट के उनके इन टच थे, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के लिखते थे, वो इन टच थे। अच्छा। तो मैंने कहा सर ये बहुत गहन है मेरे लिए, वाह। तो आपकी उंगली पकड़ के चल रहा हूँ, वाह। ये नैया आप ही पार कराएंगे। और क्योंकि ऐसी फिल्म है, ये मेरी फिल्मोग्राफी की फिल्म नहीं है, ये मेरे उसकी फिल्म नहीं है, जो जॉनर की फिल्म नहीं है। तो मैं अनुभव सर की फिल्म के जॉनर की फिल्म है, तो उनको ट्रस्ट करते हुए फिल्म की है मैंने ये। Has there been a method to your career, or it just happened like that? Because people call you, they give you names कि आप तो मीनिंगफुल सिनेमा के टॉर्च बियरर हैं और ये हैं, but I'm sure it can't happen by your wish and will, ना? नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक ये दोनों मिले जुला एक काम है, बाय डिफ़ॉल्ट भी है, बाय डिज़ाइन भी है। बाय डिज़ाइन भी है? हाँ, क्योंकि पहली फिल्म मिलने से पहले कम से कम 5-6 फिल्में मना की थी मैंने, कि न्यू कमर नॉर्मली करते नहीं है। Really? दे आर डेस्परेट टू डू समथिंग, बिकॉज जो मिलता कर लेते हैं। हाँ। पर मुझे एक बात का यकीन था कि अगर मेरी पहली फिल्म गलत पड़ती है तो मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप बाहर से आते हैं इस इंडस्ट्री से नहीं, तो दूसरा मौका आपको कोई नहीं देगा। तो मैं खुद जर्नलिस्ट था, मतलब क्वेश्चंस पूछता था, स्टार से इंटरेक्ट करता था, हर एक का उतार चढ़ाव देखा है, उनकी गलतियों से देखा है। तो मैंने सोचा कि कोई स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग हो या फिर अलग ही दिखे, तब शायद मैं अलग दिखूंगा। मैं रन ऑफ द मिल में, मुझे पता था शुरू से मैं अनकन्वेंशनल एक्टर हूँ और मुझे अनकन्वेंशनल चॉइसेस ही लेनी पड़ेंगी। तो उसके चलते ऐसा जॉनर बन गया जो शायद उसमें मैसेज होता था या कुछ क्वर्क होता था, किसी टैबू सब्जेक्ट को छेड़ते थे, और लोग एंटरटेन भी हो जाते थे, मैसेज भी घर ले जाते थे। तो हो गया वो। बट बहुत अच्छा हुआ, एंड ग्लैड कि हुआ। इंडस्ट्री को भी एक अलग पहचान चाहिए थी। बट यू नो, आप थिएटर बैकग्राउंड से हैं और थिएटर के बड़े किस्से होते हैं आयुष्मान। अब जैसे मेरे साथ कई बड़े अच्छे एक्टर्स थे जो बहुत अच्छे, हैंडसम, गुड लुकिंग, सब कुछ हैं, मतलब लड़कियां मरती हैं उनमें, लेकिन किसी प्ले में पेड़ बने। जी। आपकी कोई एक अच्छी सी थिएटर की स्टोरी? मैं स्टोरी बताता हूँ। देखो, ऐसा है कि ये मेरा एक संयोग रहा है कि एक खुशकिस्मत रही है कि मैंने कभी सेकंड लीड नहीं किया थिएटर में। क्या बात कर रहे हैं? कमाल हुआ है, बताता हूँ क्या हुआ था। मतलब पहले प्ले में क्या होगा, वो भी सेकंड लीड, उससे नीचे नहीं गया। हुआ ये कि मेरा दोस्त रोचक, मैं नया इंग्लिश ऑनर्स ज्वाइन किया था, तो रोज मैं पढ़ाई करते हुए ना, खिड़की से ऑडिटोरियम नजर आता था कॉलेज का। अच्छा। और मेरी नज़र हमेशा ऑडिटोरियम पे रहती थी। अच्छा, ये ढोलक जा रही है, अच्छा ये लोग ये कुर्ता पहनकर, कहीं चोला पहनकर जा रहे हैं, अच्छा अंदर आ गए, बाहर ठहाके लगा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं।
बहुत इंटरेस्ट लगता था मुझे, क्योंकि मैं 11th-12th में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, मेरा PMT इतना अच्छे नंबर से क्लियर नहीं हुआ था, तो मुझे आर्ट्स लेना पड़ा। अच्छा। तो पापा की शर्त थी कि बेटा अब आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगे, आगे जाके IAS की तैयारी करो या फिर MBA करो, लेकिन अब आर्ट्स आपको अपने मतलब के सब्जेक्ट मिल गए, सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। तो मना कर दिया सब कुछ करने से। तो मेरा मन थिएटर में था, तो गया उसके पास, रोचक के पास, कि देखो मेरा मन है थिएटर करने का, घर पे नहीं बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, ऑडिशन या फिर अपने टीचर को, कोच को, जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको ज़रा बता दो, मेरी सिफारिश कर दो। क्या ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। उनकी वर्कशॉप चल रही थी, स्टेज पे मुझे बुलाया कि हाँ, क्या मेरा दोस्त है, हाँ खड़ा करो उसे। तो मुझे 3-4 डायलॉग दिए, और रोचक वो स्टेज पे मेरे साथ था, तो कहता रोचक तुम बोलो, हाँ वही उसको बोलने दो, ठीक है। और रोचक तुम बताओ क्या लाइन है, अब रिपीट करो आयुष्मान। रिपीट किया तो रोचक को बैक स्टेज भेज दिया, मुझे वो वाला रोल दे दिया। रोचक कहता मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तेरी वजह से मुझे बैक स्टेज भेज दिया गया। तो रोचक तब से म्यूजिक संभालने लग गया हमारे प्लेस का, एंड ही इज अ म्यूजिशियन राइट नाउ। तो हाँ, तो ये बहुत ही उसको अजीब लगता है कि यार मेरा रोल था, वो इसको मिल गया। भाई मुझे आपकी दोस्ती मंजूर नहीं है। नहीं, ये दोस्ती अभी तक मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ कि उसकी वजह से हुआ जो हुआ, नहीं तो मैं तो शायद किस्मत के धनी है आप। जी बिल्कुल, ये एक बात इसका मतलब है जी। हमारे जो डायरेक्टर साहब थे उनको नाम भूलने की आदत थी, तो हमारे थिएटर ग्रुप में एक आदमी था शमशीर, कहते थे अरे सुनो, अरे 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 तलवार। मैं वही बोला, शमशीर की तलवार हो गई। अरे चाकू सुनो। थिएटर के किस्से ये है। अच्छा, तो अनेक जो फिल्म है भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, people have this way of being very loose with their tongues. Yeah. So इस फिल्म को करने के बाद what is it that you're taking home? मुझे तो चलो इन हादसों के बारे में पता था, और मुझे पता है गलत है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है लोगों को लगता है गलत है ही नहीं। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक कोलोकियल टंग है कि ये हाँ तो इनको यही बोलेंगे, तो ये बताना जरूरी है कि ये गलत है, उनको वहीं पर टोकना जरूरी है। और एक इस फिल्म के जरिए आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैं जो भी फिल्में करता हूँ सीखने को मिलता है, चाहे मैं LGBT के लिए फिल्में की हैं, अभी तक सीख रहा हूँ। आर्टिकल 15 ने कास्टिज्म के ऊपर की है, इतना डीप रूटेड कास्टिज्म है, अभी तक सीख रहा हूँ, क्योंकि प्रिविलेज बैकग्राउंड से आपको पता नहीं चलता, पता नहीं होता। जब तक आप बीती नहीं होती तब तक आप समझ नहीं पाते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, आप नहीं समझ पाते हैं। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट की डिस्क्रिमिनेशन मेरे सामने हुई है। हमारे थिएटर ग्रुप में एक्टर थे नॉर्थ ईस्ट से, गिटारिस्ट भी थे, वो उनके साथ होती थी, तो हमें तो बुरा लगता था। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये मैं देख चुका हूँ, मैं शायद उस जगह से आता हूँ, मैं शायद ज़्यादा अवेयर हूँ, लेकिन फिल्म वहाँ तक पहुँच जाए कि उन लोगों तक जो अवेयर नहीं है, ये एक कोशिश है फिल्म की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आयुष्मान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं कई जगह इसको कोट भी करते आई हूँ। उन्होंने बोला था कि एक्टर्स के सरनेम भी नहीं होने चाहिए। सही बात है, पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये कौन सी जात का है, कौन से मजहब का है। होने चाहिए। मुझे याद है कि पहले जब मैं नया मुंबई आया था तो मैं हाथ में लाल धागा बांधता था या कड़ा बांधता था, क्योंकि मैं लेकिन मुझे लगता है एक्टर की कोई ज़ात, कोई मज़हब नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो ऑन स्क्रीन, आपका रियल लाइफ पर्सोना उस पर हावी होना ही नहीं चाहिए। वो एक क्लीन स्लेट है, क्योंकि आप एक अलग जिंदगी जी रहे हैं उसमें। या दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड आई हैव बॉट दैट पॉइंट। फारूकी हटा दूं? आपकी मर्जी है। One more thing, I see a bulked up body in this and a different hairstyle. अच्छा लग रहा है वो। प्रिपरेशन की आपने? काफी लोगों ने बोला कि वो हेयर स्टाइल रख लेना चाहिए मुझे, रख लीजिए, और बॉडी भी रख लेनी चाहिए। सीरियसली? और क्या करूं, हर फिल्म में बॉडी अलग होती है। ना? अनेक के बाद मुझे डॉक्टर जी शूट करनी थी, जिसमें स्टूडेंट बनना था, फिर से मुझे 8 किलो कम करना पड़ा। फिर एक्शन हीरो में थोड़ा सा फिजिकलिटी पे और काम करना पड़ा। करेक्ट। सो ये तो एक एक्टर की जिंदगी है, बॉडी हो या फिर हेयर स्टाइल हो, इट्स एवर चेंजिंग। ऑल द बेस्ट आयुष्मान। थैंक यू सो मच। ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। We're heading for a short break. After the break, we have an interview with Yo-Yo Honey Singh, the man who reigned supreme with his lovely party songs. He comes up with a new song after the break. Welcome back to Now Showing. I'm Atika Farooqui.
कैसी बातें करते हो, जो बताना है वो छुपाते हो. Sonu Nigam sings these beautiful lines in Hansal Mehta's film Bai from the anthology Modern Love. Based on a gay couple who strive to come out of the closet because of their socio-political, religious backgrounds, this film is certainly one of the best that I have seen in recent past and suggest you watch it too. Here is a tete-a-tete with Tanuja, Hansal Mehta, Prateek and Ranveer Brar. The story is basically about a closeted man living in South Mumbai who already has a trauma of communal riots. He has a trauma of being in the closet for many, many years growing up. You've already explored this topic in detail in Aligarh also. Why did you attempt this story? This is the story of our times. ये कहानी तो वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की कॉलम से है, like Modern Love is a series adapted from New York Times columns. तो वैसा ही कॉलम था, and I saw the potential कि इस कहानी को यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल कहानी बना सकता हूँ. तो जैसे बट इट वाज अ डिपार्चर फ्रॉम अलीगढ़ कि अलीगढ़ एक तरह की कहानी थी. इट वाज आल्सो टोल्ड एट अ टाइम व्हेन सेक्शन 377 हम पर लागू था. It was about also that plea कि भाई at the कि nobody should be condemned to a life of loneliness. तो ये कहीं ना it is like this film is like a prequel to अलीगढ़ कि अगर मतलब मंजू को अपना प्यार नहीं मिलता, अगर मंजू अपने प्यार के बारे में अपने घर पे बात नहीं कर पाता, अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, तो someday he would find an ending like Professor Siras's in अलीगढ़. All your stories have a thread कि कहीं ना कहीं शाहिद और बाई भी कनेक्टेड थे. इन बाई की एक लाइन है कि नफरत फैलाने वाले अक्सर बिकाऊ होते हैं. बस वो मतलब आज अगर इस बात को हम सब समझ ले आज, तो हमारे ट्विटर पे ट्रोल्स नहीं रहेंगे, हमारे आपस में हेट्रेड नहीं रहेगी. काजोल से मैंने पूछा था कि आपकी पेरेंटिंग और आपकी मदर की पेरेंटिंग में डिफरेंस क्या है. शी सेड कि उनको अपनी पेरेंटिंग पे जितना कॉन्फिडेंस था, मुझे अपनी पेरेंटिंग पे कभी नहीं रहा. The way I put it to them was very simple. You have the power to think. You have to be able to think for yourself and make the choices that you think are right at that time. If the choice is wrong, then you deal with those consequences. Yes. And you know, मैम, हमारे सोसाइटी में क्या होता है, तो सबसे सीनियर मेंबर होता है. Generally, she or he is the one who's the most orthodox. But in your character of Bai, she is the one who's most lenient. She says कि प्यार करता है तुझसे. Yeah, because you know why? Because if this is the way my mother and my grandmother worked with me. My grandmother understood me the way nobody else understood me. And she was the one who loved me what was unconditionally and says love is good. So actually Bai's character that I have played is very much like my own grandmother. ये जो character है, he's a Manzu is closeted gay man who finds it difficult to, वो बोल भी नहीं पाता है, वो लड़ भी नहीं पाता है. वो जो तहजीब है ना कि नहीं बड़ों से वो नहीं करते, बड़ों से बहस नहीं करते, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है अपनी बात कहने में जो आड़े आती है. How did you prepare for this role? I've seen a lot of such people who are closeted for a lot of other reasons, not only about their sexuality, but a lot of other reasons. And as you rightly said that, you know, we've been fed this thought that बाई नहीं समझेंगी, दादी नहीं समझेंगी, दादाजी को अच्छा नहीं लगेगा, पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं मम्मी क्या सोचेगी. And I have had such smaller experiences with my grandparents also. कभी कभी घर पे ऐसा होता था कि नहीं ये नहीं करना है, तो क्यों हम नहीं करते हैं सालों से, पर क्यों हमारी कभी हिम्मत नहीं होती थी ऐसे पूछने की बड़ों को, तुम लोग आज बड़े मुफट हो गए. But the moment I spoke about the same topic to my grandparents or to the elders, they were quite okay about it. कि हाँ ठीक है, तुझे नहीं करना है ना, तू ये कर. I was just drawing these experiences to create this character. I just felt that when I cook, एक ऑनेस्ट एक्सप्रेशन और एक कनेक्ट इंपॉर्टेंट होता है. और अगर आपका एक्सप्रेशन ऑनेस्ट है, तो वो आपका अगर खाने के साथ अपने क्राफ्ट के साथ कनेक्ट है, तो लोग कनेक्ट हो जाते हैं. तो यू नो, एंड ओवर द इयर्स धीरे धीरे जब आप 18 साल में खाना बनाते हैं, आप लोगों के लिए खाना बनाते हैं. जब आप 45 साल के होते हैं, आप अपने लिए खाना बनाते हैं और लोग आपसे जुड़ते हैं और आपके जरिए खाने से जुड़ जाते हैं.
एंड हंसल सर आल्सो मेड इट वेरी क्लियर कि यार देखो बच्चे हैं नहीं, ये जेन्युइनली 2 40 साल के लोग प्यार में, है ना? तो अगर दो 40 साल के लोग प्यार में हैं, तो 40 साल के इंसान का प्यार का एक्सप्रेशन जो है वो तो दुनिया घूम के एक आए हुए हैं, एक जो है, तो वो एक्सप्रेशन तो यूनिवर्सली कनेक्ट होगा ना लोगों से। High heels se nache ta 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 ta. Up next we have singer Yo-Yo Honey Singh along with the star of his new song Divya Khosla Kumar in conversation with my colleague Vishal Chatkara about their latest collaboration titled Designer, and that one singer with whom Yo-Yo would like to have a rap battle with. I'm looking forward to that. वो तू है इंडियन दीवा वो मेरी गल सुन बीबा वो तू है इंडियन दीवा लगदा है तेरे नान के जनीवा किवें कीती है तू बॉडी डिजाइन सेक्सी आंखों पे काजल की लाइन 24 घंटे कड़ी वेखा सेट करा टाइमर बना ले मैनू अपना डिजाइनर yo it's your boy yo Honey Singh we got Divya Khosla Kumar in the house. Divya and Yo-Yo, congratulations for the success of your brand new single titled Designer. So to start with, how you zeroed in on this song with Guru Randhawa, and Divya, when you came on board? First, we made the song in 2020 with Guru, and I was in lockdown, so I told him to send me some vocals. So he sent me this vocal of this song, Designer. So I worked on it, and it just took me 1 hour to produce the whole music of it. And finally, I sent it to Bhushan ji and to Guru, and they both loved it. It's a great collaboration, and it's such an amazing song. When I heard the song, I freaked out. I was like, wow, you know, ऐसा गाना है जो I think बच्चा गाएगा. I have always loved Honey's work. He's so talented. जो lyrics लिखते हैं, जो rap करते हैं, amazing. He did even Sani for Yariyan, and he's so fabulous. And Guru is also extremely talented. So it was amazing for me to come together with them. And I'm so happy कि सबको video इतना पसंद आ रहा है, गाना पसंद आ रहा है. You're a rapper, and we always heard about rap battles. So whom would you like to have a rap battle with, and do you think you have no competition? I'm not a rap artist, you can say. I'm a pop hop artist. I'm basically a pop artist. मैंने जो rap किया है वो बहुत easy rap है. That's not exact a strict rap. और जहाँ से मेरी समझ है hip hop की, मेरे hip hop में rap battles नहीं है. तो मैं battle किसी के साथ नहीं करता. मैं party करता हूँ, enjoy करता हूँ, मस्ती करता हूँ. Battles नहीं करता मैं. But if given a chance to have a rap battle with one artist, Drake. not somebody in India, Not in India. whom you like to defeat? No, all boys are there. They're all my boys. Yo-Yo, during a Q&A session, you have said that your most cherished experience was working with Gulzar and Vishal Bhardwaj for the movie De Ishqiya. What you discovered about music and lyrics while working with Gulzar Saab? गुलजार साहब से मुझे मिलने का मौका नहीं मिला था उस दौरान. मैं बहुत एक्साइटेड था. मुझे लगा था शायद गुलजार साहब से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन मेरा दिल टूट गया था. वो वहाँ थे नहीं. तो फाइनली मेरे पास एक हुक लाइन थी, ना आ रही है ना जा रही है, खड़ा खड़ा मुस्कुरा रही है. दैन गुलजार साहब ने उसको चेंज करके लिखा, ना आ रही है ना जा रही है, रिवर्स में मुस्कुरा रही है. क्या गोल चक्कर चला रही है या गोल पहिया घुमा रही है. सो ही रोट इट ब्रिलियंटली. वो गाना इतना चला नहीं था, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि गुलजार साहब की कलम से निकला वो. You of course have worked for 4 years on your debut album titled International Villagers. Would you say that was your best work? नो आई थिंक मेरा बेस्ट वक्त तो अभी आने वाला है. मैंने अभी 48 सॉन्ग्स बनाए हैं और वो ऐसे गाने हैं कि फैंस बहुत पसंद करेंगे और दैट्स गोना बी द बेस्ट वर्क कमिंग अप वेरी सून. कीप इट लॉक्ड. Yo-Yo Honey Singh. Pizza. And I say goodbye here. कैसी बातें करते हो, जो बताना है वो छुपाते हो यहीं लेकिन भूल जाते हो. यूं दिखाते हो गम नहीं कोई, हंसते हंसते फिर आंख भरते हो, हद करते हो. With these beautiful lines from Modern Love, here is a reminder to live light and speak your mind. And watch good cinema. I see you again next week. Till then, you take good care. Bye-bye.